Good afternoon. With the permission of Honorable Union Minister of State, Dr. Subhash Sarkar, who is here since yesterday, despite all the difficulties of road closure and diversion and flight getting diverted to Calcutta and all that, Sir has come here. So first of all, we are very grateful that Sir has, despite all that, come here, and because of his visit, our enthusiasm has got a tremendous boost. सर को यहाँ आउनुको पर्पज तपाईहरुलाई यादै छ अहिले बोर्डको एनुअल डे थियो हिजो सरले सिक्किम युनिभर्सिटीमा कुराहरू गर्नुभयो अहिले NIT जानु हुँदैछ अनि केन्द्रीय विद्यालय भिजिट गर्नुभयो जोरथाङ गभर्नमेन्ट स्कुल पनि भिजिट गर्नुहुन्छ पर्सि बिहानै अनि सर एउटा मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ ही इज अ गाइनोकोलोजिस्ट बाइ प्रोफेसन एन्ड ही बिलोंग्स टु बांकुरा फ्रम वेस्ट बेंगल and he will also be visiting a vaccination center day after tomorrow morning at Rabangla. So being a doctor, and vaccination, we have achieved a milestone of 100 crores. So basically we have focused during his visit on the new policy, national education policy, and how to expedite the campus construction of Sikkim University and NIT, because now NIT also has been given, tabale yaad cha, NIT like Khamdong ma, डुङडुङ ब्लकमा सरकारले 100 एकर जमिन अलरेडी ट्रान्सफर 100 मा करिब 90 एकर ट्रान्सफर भइसकेको रहेछ NIT को नाम सो दिस इज द थिङ आई मिन न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पोलिसी अनि NIT सिक्किम को क्याम्पस को कंस्ट्रक्सन छिटो भन्दा छिटो गर्ने अनि सिक्किम युनिभर्सिटी को एक्सपेडाइट गर्ने सो दैट दे कैन शिफ्ट टु देयर क्याम्पस एज अर्ली एज पोसिबल अनि त्यहाँदेखि अरु डिपार्टमेन्ट को के कठिनाई छ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया में के पेन्डिङ छ त्यो कुराहरू पनि हाम्रो भएको छ सो हामी बहुत खुशी छौं अनि बहुत आभारी छौं सर को अनि विथ दीज ओपनिंग वर्ड्स माय आई नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल यूनियन MOS कि सर आप सर इनको थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ बता दीजिए सर बाकी देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस नमस्कार कस्तो हुनु हुन्छ अभी तो हम लोग सारे दीपावली के तौर पर जा रहे हैं पहले से ही दीपावली का सबको अभिनंदन भाई ज्ञापन करता हूँ आज के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य विषय है NIT और सिक्किम यूनिवर्सिटी I am very happy about the fact that Sikkim government has provided very good quality land where easily water can be available, that has been tested, and the measuring about 100 acres at Khamdong, which is also very close to Gangtok. Yes. East Sikkim for the construction of NIT campus. The work of construction is likely to start very soon after completion of all formalities. Paperwork सारे complete हो जाएगा तो और only for this Sikkim government has expended there is a expenditure of 26 crores to acquire this land. Yes sir, yes. इसलिए मैं सिक्किम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको सुनने में भी बहुत खुश हो गए कि ये फॉर्मेलिटीज होने के बाद ही 500 करोड़ रुपीस NIT के लिए 500 करोड़ ये एकदम सैंक्शन करके रखा है जब ही whenever every paperwork will be completed it will be released. It has been kept dedicatedly for NIT and kept ready for release. Another good news is that phase 1 Sikkim University campus at Yangyang, South Sikkim at the cost of 98 crores has already been completed, you know already. And expression of interest for phase 2 has also been published, and for that also 300 crores has been sanctioned by Central Government of India. For the Sikkim phase.
सेकेंड Yes, फेज। yes, yes. আমরা ये भी आशा करते हैं विद इन 2.5 ईयर्स 2.5 साल में ये कैंपस भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये मूल मुद्दा है। और इसके छोड़कर जो हम आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट सिक्किम इज ए स्मॉल स्टेट बट इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेट। स्मॉल स्टेट बट क्वालिटेटिव स्टेट। इट इज ऑर्गेनिक स्टेट एंड India government has an aim, look towards east. East means northeast. Northeast. That's why Sikkim and other northeast provinces are, we are very eager to develop all these states naturally, as because the population is less. This state will be a pioneer state for implementing national education policy. तो आज अभी जो मीटिंग हुआ है उसमें और 2 सत्र भी चलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन के बारे में उसको वर्कशॉप होगा। और ये मॉडल जो पहले से सिक्किम गवर्नमेंट, सिक्किम सरकार ने, मैं सारे सिक्किम को सरकारी जो अधिकारी मंत्रीगण को मैं धन्यवाद दूंगा। इन्होंने पहले से ही जो बच्चे को स्कूल में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो चाहते हैं अधिकाधिक चीज उसमें चल रहा है, इसलिए भी हम लोग बहुत खुश हैं। और सारे मुद्दे है तो हम ये तो आपको दे देंगे कॉपीज, चलेगा? और कुछ शुड आई रीड और यू विल बी प्रोवाइडेड? हां, तपाईहरु लिँदा हुन्छ। अनि तपाईहरुको 1-2 वटा के खास कुरा चाहिँ सोधिहाल्दा हुन्छ। अब नाउ दे कैन आस्क क्वेश्चन सर। यस सर, एनआईटी का जो इशू है, एनआईटी अभी रावंगला में जो चल रहा है, जो रावंगला का जो कंडीशन, जो कैंपस का जो अभी चल रहा है, वहाँ का कंडीशन ठीक नहीं है। बहुत सारे वहाँ के कंप्लेन आते हैं। हाँ। तो खामदोंग में कब तक ये 90 एकड़ तो लैंड हुआ है और 10 एकड़ का बात चल रहा है, तो कब तक एनआईटी खामदोंग में कंप्लीट होगा? ये तुरंत हो जाएगा भैया। देखिए सरकार ने तो इतने हिम्मत दिखाए ना, सरकार इतने हिम्मत दिखाए जो मोर देन 26 करोड़ दे हैव स्पेंट टू एक्वायर द लैंड्स। ओनली छोटा कोई प्लॉट्स है, इसके साथ बात करके सारे लैंड प्रोवाइड कर देंगे। इससे ये टाइम बाउंड, देखिए ये भी 6 महीना भी हो सकता है, विद इन 6 मंथ, ये 2 महीना भी के अंदर हो सकता है। जब ही तुरंत फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएगा तभी वो शुरू हो जाएगा। देखिए सरकार के पैसा तो खजाना में पड़े हैं ना, तो इसको तो यूज होना चाहिए। ठीक है, इट विल बी डन विद इन वेरी शॉर्ट टाइम एंड द सिक्किम गवर्नमेंट इज रेडी टू वर्क ऑन वर्कफुट मोड। ठीक है ना सर? मैं आपकी परमिशन से एक बात बता दूं सर, ये शायद कैंपस के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो पहले कैंपस को पहले कंप्लीट होने से 15 भागो नहीं। कैंपस के बारे में बता दूं कि लैंड खामदोंग के बारे में, हाँ खामदोंग में जो कैंपस बनना है, तो मनी ऑलरेडी अलोकेटेड है 500 करोड़, लैंड ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है 90 करोड़। कंस्ट्रक्शन शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिमेनिंग 10 एकड़ है उसमें कुछ 90 एकड़ जमीन ट्रांसफर भागोचा हो गया है और 500 करोड़ एलोकेटेड है। तो जो टेंडर की फॉर्मेलिटीज हैं करके, हमें लगता है कि अगर कोई जैसे कोरोना के प्रॉब्लम जो था, अब अगर दोबारा नहीं आता है, कोई बाधा नहीं आती है, तो 2 से 2.5 साल में फास्ट कंस्ट्रक्शन करके एनआईटी को वहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है। सर, इसी मुद्दे पर जो सिक्किम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बात है, फर्स्ट फेज का काम तो कंप्लीट हुआ, सेकंड फेज का भी टेंडर होने वाला है, जो हो गया है ईओआई हो गया। तो 14 साल हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी रेंज हाईवे यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, 10 किलोमीटर उसमें चलता है हाईवे यूनिवर्सिटी, गैंगटॉक का रोड में सर दोनों तरफ के रहा है। सिक्किम यूनिवर्सिटी का जो सेकंड फेज का काम टेंडर हो जाए, कब से शुरू होगा? और इसमें एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, पहले सिक्किम यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हुआ था उसका ऑल इंडिया में रैंकिंग बहुत अच्छा था, मगर अभी रैंकिंग थोड़ा सिक्किम यूनिवर्सिटी का लो हुआ है, अच्छा नहीं है रैंकिंग। तो सिक्किम यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या मिनिस्ट्री क्या सोच रही है? देखिए मिनिस्ट्री 500 करोड़
300 करोड़ एलोकेट करके रखा है। ये से देखिए मिनिस्ट्री प्रतिबद्ध है इसको रैंकिंग को आगे बढ़े। मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बात किया कैसे इसको और आगे बढ़ाएंगे, ये जरूर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, सिक्किम आगे बढ़ेगा। सर रैंकिंग के बारे में बता दूं सर आपकी परमिशन लेके। रैंकिंग अभी कल ही जब सिक्किम यूनिवर्सिटी में मैं भी था प्रोग्राम में सर के साथ, तो इनकी जो रैंकिंग थी NIRF जो रैंकिंग होती है ऑल इंडिया, तो उसमें 1500 इंस्टीट्यूशन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें जो पुरानी रैंकिंग थी वो 150 100 के बाद वो एक एक रैंक नहीं देते हैं, वो बैंड देते हैं 101 से 150, 151 से 200 एंड सो ऑन एंड सो ब्लॉक में होता है। तो दे वेयर इन 151 टू 200, अभी दे आर इन 101 टू 150। तो एक्चुअली रैंकिंग इम्प्रूव हुआ है और ये NIRF का जो पोर्टल है उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा करेक्शन यही करना चाहूँगा कि उनकी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है और 32 डिपार्टमेंट सिक्किम यूनिवर्सिटी में है। मेरे ख्याल से अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो सिक्किम यूनिवर्सिटी से हमारे सारे कॉलेज एफिलिएटेड हैं और सिक्किम यूनिवर्सिटी से अभी आज की डेट में हम बात कर रहे हैं, उनसे हमको पूरा सहयोग उनके मैनेजमेंट से BC साहब से मिलता है। सर कब तक उसका जो पूरा फैकल्टी यांगयांग से शुरू हो जाएगा सर? वहाँ से कब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिक्किम यूनिवर्सिटी जो है यांगयांग से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा? सर ने बताया अभी कि 2-2.5 साल करीब 2.5 साल लगने का चांस है, क्योंकि असल में अगर कोरोना नहीं आता लास्ट ईयर तो अब तक काम काफ़ी आगे बढ़ गया होता। कोरोना से 1.5 साल का नुकसान हो गया। तो 24 में 21 ख़त्म हो रहा है, 22-23 24 में ये उम्मीद है। लेकिन अभी ये कुछ बात ये भी हो रही है कि शायद कुछ डिपार्टमेंट अगर वो चाहें, जैसे 32 डिपार्टमेंट है तो कुछ डिपार्टमेंट्स अगर वो शिफ्ट कर सकें, क्योंकि वहाँ पे शिफ्ट करने में फैकल्टी का रेजिडेंस, उनके बच्चों का स्कूल सब कुछ चाहिए, तो अगर वो शिफ्ट कर सकेंगे तो कर लेंगे। अदरवाइज 24 में ये उम्मीद है कि पूरी यूनिवर्सिटी यांगयांग चलेगी। 24 से जो यूनिवर्सिटी वहाँ से ऑपरेट होगी फुल फ्लेजेड। जी 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 Sir, my question is like since you are here for 3 days visit, so you will be definitely visiting schools and to understand the proper working system and also the infrastructures of rural schools basically. My question is that to the state minister also कि सिक्किममा एजुकेसनको क्षेत्रलाई लिएर के चुनौतीहरू छ अनि यो चुनौतीहरूलाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको फन्डिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट। सो तपाईँहरूले प्राइम मोस्ट डिमान्ड्सहरू चाहिँ के छ, मतलब तपाईँहरूले सरलाई चलाउनु भएको अनि हाउ द मिनिस्ट्री इज टेकिङ इट? लेट्स स्टार्ट विथ यू। So basically, as the we are very fortunate that after taking over as the new government, we have been receiving all the support from the Ministry of Education. And then we are taking, there are a number of steps we are taking for improvement. For instance, like the primary problem that we are facing is the lack of internet connectivity in the remote areas. That problem will also solve because now Sikkim has been given the independent BSNL. So, so that problem, and besides that thing also, as you know, all of you know that during this pandemic situation, the steps which we had taken for reaching to the students or even far from places, we have made use of so many devices. For instance, like we have used All India, we have used TV channels, so we have used, we have distributed laptops also, we have distributed smart basic and with the recorded this thing, pen drive also. And then not only that, we have also started this homeschooling also. So these are the steps which are taken to reach out to this, because as we know, during the pandemic situation, the stress which the students had to face, we had to take care of them, because then now that we have opened the schools also, even the primary school classes that's also open, there shouldn't be any problem. The funding part is concerned, government of India has been very, very generous. Whenever we have something, they have not only advanced thing, we have receiving all the guidance also from them, and Honorable Minister himself is here. We had interaction yesterday also, and he had asked us what demands we have, what this thing problems we are facing, and we have elaborately submitted to him, and he So could you like to mention few important demands like No, sir, with your permission, sir. Oh, yes. I will add something in this. What sir has already said. You have asked about demands. Now, I can say this. Sir is here. On 12th of September, the another Minister of State, Dr. Rajkumar Ranjan Singh had come. Today, sir is here. So, Government of India को जो कमिटमेंट छ नॉर्थ ईस्ट को लागि, सिक्किम को लागि मात्रै कुरा गरे भने पनि
we find that every 1 month 2 month there is a tour of a union minister education को आउनु हुँदैछ. So that shows amply the commitment. डिमांड को पूरा गर्दाखेरि समग्र शिक्षा, मिड डे मिल, रूसामा, whatever funds we have asked during the annual plan discussion हामीले पाउँदैछौँ. हामीले नपाएको we are already getting it. So there is no special demand कि this has not been fulfilled, so please give us. I have apprised sir yesterday that government of Sikkim has taken a bold decision to establish Netaji Subhash Chandra Bose University of Excellence at Chakhung, and the investment which has been envisaged for this big center of excellence at Chakhung on around 75 acres is to the tune of almost 900 crores. Now it's a big money, but government has taken a bold decision to establish a very high quality higher education institute. तो उसके लिए हमको भारत सरकार से ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू पैसा मिल रहा है, केंद्रीय मंत्रालय से भी मिल रहा है, और उसमें हम चाहेंगे, हम सर के सामने विनम्र ये निवेदन करते हैं कि हमें आगे उसमें, चूँकि सिक्किम सरकार ने इतना बड़ा एक फैसला किया है कि इतने अच्छे इंस्टीट्यूट को बनाया जाए जहाँ दुनिया भर के बच्चे आएँ और फैकल्टी आए, हमको थोड़ा सहयोग की और अपेक्षा रहेगी भविष्य में. आज की डेट में स्पेशल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऑलरेडी हमको मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला हुआ है, हम लेकिन और चाहिए. NIC बटा हमें ऑलरेडी 15 करोड़ वी हैव ऑलरेडी गॉट. सर, जो अभी यहाँ पे 14 साल से स्ट्रगल कर रहा है सिक्किम स्टेट यूनिवर्सिटी अपने प्रभुत्व पाने के लिए, उसके अलावा बाहर पे जो अभी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, ये सब नहीं है कि पहले से जो सिक्किम में इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है उसको अच्छे से आगे लगाया जाए, फिर उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी ध्यान दिया जाए, ताकि जो यहाँ पे अभी चल रहा है उसको एक प्रॉपर वे मिल जाए. मैं आपका क्वेश्चन शायद समझा नहीं. दोनों एक साथ होने में दिक्कत क्या भैया? Sir, just wanted to add a question also. When there is an existence of a couple of incomplete universities as East Sikkim, right? Why come up with so many new universities time and again? These are नहीं, just, इसमें सर एक बात बता दूं मैं लोगों को. अच्छा, सर कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम बताएंगे. नहीं तो देखिए, एक साथ दो काम होने में दिक्कत क्या है? नहीं सर, जो पिछले 14 साल से जो पेंडिंग चल रहा था, हाँ तो वो तो हो रहा है ना, इसलिए तो जो हमारी जो सिक्किम यूनिवर्सिटी के लिए 300 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन, शायद टेंडर भी हो चुका. यस सर, और उसके पहले 98 का कंप्लीट भी हो चुका है, 400 करोड़. तो वो जब तक ये आपको ये की कहना है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा नया प्रोजेक्ट नहीं लेंगे. तो बताइए ना. इसका मतलब सेंटर फॉर एक्सेलेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है. उसके लिए भी तैयार है, इसके लिए भी तैयार है. उसको घुमा के मत बताइए. ये भी लिखिए, ये हेडलाइंस करिए. सेंट्रल गवर्नमेंट सबके लिए तैयार है. हाँ, सिक्किम के लिए पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है. Sir, maybe the funds are not an issue, right? Funds are being given by the central government a lot, but what, as a MOS, don't you think it is imperative for the central government to also keep a cross check on how the works are being done? Some of the projects are 14 years old and they are yet to be completed. How do you see the groundwork? Is there some form What of is that? scrutiny? What is that? You please be specific. Be specific. Tell me specific. With 14 years. Sikkim University. हाँ? सिक्किम यूनिवर्सिटी नहीं, सिक्किम यूनिवर्सिटी का जो वो है बिल्डिंग है, वो 14 साल से इनकम्प्लीट नहीं है. वो तो शुरू का प्रॉब्लम था पहले तो. हाँ, पहले लैंड. लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था. अब जब बिल्डिंग शुरू हुआ, फेज 1 कंप्लीट हो गया, हैंड ओवर हो गया, उसमें 98 करोड़ की लागत से हैंड ओवर हो गया, और अगला होने वाला टेंडर भी हो गया. तो जो यूनिवर्सिटी नया आ रहा है वो प्राइवेट है. देखिए, ये सरकार का है. दोनों में कोई अलग अलग फंडिंग है, अलग अलग मैनेजमेंट है. दोनों में कोई वो नहीं है कि वो होने से कोई सरकार और यूनिवर्सिटी नहीं बना रही, प्राइवेट लोग बना रहे हैं. So how inclusive the national education policy as Yes. far as Northeast is concerned? What are the Because concerns there's a after having the separate stakeholder syllabus for Northeast is a much debated issue discussed in Parliament also on Northeast. So your take. Something It is not at all debatable, because India is a vast land and different cultures, but there is unity in different cultures. No problem. We'll give the priority of the regional languages. No problem. Sir, you had a stakeholder meeting on NEP with Yes. the local people here. What are the perspective you understood in point of Sikkimese people? They have already come forward. They have constituted a committee. Yes. Sikkim has already constituted a committee, and they are planning
its implementation. Sikkim is. In the Chief Minister's meeting with the Union Education Minister in August, this particular issue of RUSA grants, pending RUSA grants was raised. What is the status on that? Another thing, there was this request for the teacher training institution, the diet, the state had requested the center for that. What is the status on that? It's a very recent thing, meeting in the August. RUSA grant has already been sanctioned. The issue was that it too. has not been released. It has been sanctioned. टीचर ट्रेनिंग के बारे में क्या? नहीं, मैं सर बता देता हूँ सर, आपका परमिशन लेके। हिंदी में बोल दो या इंग्लिश में? हिंदी में। रूसा में हम लोग को कई सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं जो चल रहे हैं, और रूसा का जो प्रीवियस ग्रांट जो मिला था, जो वोकेशनल कॉलेज डेंताम और चाकुंग का जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, उसमें भी हमको रूसा से 12 करोड़ ऑलरेडी मिल चुका है, और मांगशिला कॉलेज सबका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हमें ग्रांट सैंक्शन हो गया, सर ने बोला है। रिलीज इसलिए नहीं हुआ है कि जो पिछला जो रिलीज़ हुआ है उसका हमको कंप्लीट करके यूसी देना है, तो एक प्रोसेस है, उसमें वो हो जाएगा, फिर वो पैसा हमको मिल जाएगा। और आपने एक और कुछ पूछा, डाइट का मैं बता दूं सर, यहाँ पर हैं एक्चुअली एक बहुत ही खुशी की बात ये है, डाइट अगर आप देखें जो बुर्तुक हेलीपैड है उसके नीचे हमारी डाइट बिल्डिंग थी जो पहले की, अगर आप अभी जाके देखें उसके बगल में नई बिल्डिंग बन गई है, वो SCRT की बिल्डिंग है। SCRT की बिल्डिंग सिक्किम में नहीं थी, पहले नहीं थी, मिनिस्ट्री ने सैंक्शन किया 3-4 साल पहले, वो बन भी गई है, उसका फेज़ 2 भी इस बार शुरू हो रहा है। तो हमने जो मांगा है मिनिस्ट्री से इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सपोर्ट, हमको पूरा मिला है। और किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में नियम ये होता है कि जो पहले वाला ग्रांट है उसे आप खर्च करिए, फिर आपको आगे और मिलेगा, तो हमको आगे और भी मिलेगा द मोमेंट वी आर एबल टू एग्जॉस्ट। Thank you.